Hello everyone, welcome to EcoMyS Academy. So we are discussing the artificial intelligence magazine, which like Yojana magazine, where we are started discussing the artificial intelligence. We have discussed a few parts in it, and this series, this particular video is of fourth part. We are making more and more precise videos so that it would be better for you to make sure that like within the less space or vacuum which you would be finding within the difficult day or the like busiest day, then also you can watch these particular videos. That is the main aspect why we are making very smaller videos like 10 to 15 minute वाला वीडियो. ठीक है, सो इसमें जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और एक आर्टिकल दिया है. सो उस आर्टिकल का नाम है इंडिया टेक सर्विसेज इंडस्ट्री एंड हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू लिफ्ट दिस पर्टिकुलर इंडियन टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री. सो 2003 में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना शुरू किए थे इंडिया में, दिस टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री हैज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ कंप्लीट डिपेंडेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हुआ था, बट 2024 में जो भी है, सो ये टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज इंडस्ट्री जो भी है, इट इज गोइंग टू गेट द ग्रेटेस्ट एस्पेक्ट फ्रॉम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एंड इफ यू कुड सी द जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी है, सो इनिशियली जो चैट जीपीटी रिलीज किया था ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से समवेयर अराउंड लास्ट ईयर 2023 में, सो इट हैज सीन a huge boom, and in this 2024 also we are going to witness a rapid growth in it. If you see in 2024 it is going to witness application of generative artificial intelligence along healthcare services, financial services, education and entertainment, and this kind of aspect we can call it as a technological renaissance. So renaissance refers to rebirth of something regarding with the classical learning and wisdom. It's simply like when we learn something or when we get wisdom or when we reborn or a rebirth take place, we generally tend to question. So this particular artificial intelligence, exclusively the generative artificial intelligence which is there, so which is a sub part of the artificial intelligence branch, it is going to help us in a huge regard exclusively in 2024. By the end of this year we are going to see a lot of changes which are going to happen in most of the sectors. This generative artificial intelligence is estimated to yield an annual economic value of USD 2.6 to 4.5 US dollar trillion, and mostly this particular contribution of 2.6 to 4.4 US dollar trillion would be coming mostly from the core of Indian technological services industries. Already Indian technological service industries have focused upon giving certain solutions, and they have been prepared already. Most of the Indian technological industries which are there, they are prioritized to one particular aspect, so they are going to shift as such. If you could see, already Indian technological companies which are there, they are excelled in providing the IT services, so which is the main base of India, and business process management services also. So these two are the aspects where Indian technological companies have excelled as far. But with advent of this particular generative artificial intelligence, all these tech companies are looking in developing this particular artificial intelligence with the data sets and to have the solutions for the problems which this artificial intelligence would be having. And this expansion in artificial intelligence driven analytics, intelligent automation, personalized customer interactions, all these would be there. So if you could see, scaling the artificial intelligent innovations, if you see, so to scale up this artificial intelligence by most of the Indian technological companies, first of all, huge amount of robust infrastructure is required. So with the infrastructure which we are having right now, there we might not achieve to that particular growth what we are expecting. So there shall be huge amount of diversified and dense infrastructure which we generally call it as robust infrastructure. So that is required. That is point number one. And efficient algorithm system. And to make up this artificial intelligence very effective in involving in every segment, efficient algorithm, efficient programming is required. For that, skilled persons or trained persons are required. That's why right now this particular technological industries are giving the open
random offers to those particular people who are very efficient and learnt this artificial intelligence. That's why if you see right now in the education sector, exclusively in this particular software learning industries, artificial and machine learning has become more important. And clear understanding of the market needs, this is most important. आप तो बना दिए कुछ प्रोग्रामिंग ऐसा ऐसा करके, बट मार्केट क्या चाहती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट we have to require, so to scale up the artificial intelligence, infrastructure की जरूरी है, algorithms मतलब skilled persons की जरूरी है, उसके लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है. एंड ट्रेनिंग के लिए we should have huge amount of persons who have greatest knowledge on this particular artificial intelligence, either from local aspects or we have to learn it from other countries. And all these Indian companies जो भी है टेक्नोलॉजिकल वाला कंपनीज, होशियारी करके जितने भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में. एंड ये एल्गोरिथम जितने भी डेवलप करने वाले हैं उसको बहुत सारे लोग को इनटेक कर रहे हैं. रिसेंटली वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु हैज लर्नड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ही इज आल्सो वेरी गुड एट साइबर सिक्योरिटी. ही हैज बीन गिवन विद अ पैकेज ऑफ 38 लाख, है ना. इट इज वेरी गुड पैकेज एज सच, मुझे जितना तक पता है. सो इनिशियल ऑफर में 38 लाख की पैकेज बहुत है. सो ये जरूरी है 100%. अगर आप चाहते हैं कि लाइक आगे 5 साल में आप बहुत पैसे कमाएं, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख ले एंड उसमें आपके बहुत पैसे पड़े हैं, है ना. सो बहुत सारे कंपनीज इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं. व्हाट इज द मेन एम, इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत क्या है? सो दे आर aiming to offer artificial intelligence solutions into the market and to earn lot of lump sum amount of money. So innovative and scalable and reliable, these two are the main pillars what these Indian tech companies are looking. So as you know, like artificial solutions जो भी हैं वो innovative रहेंगे, scalable रहेंगे, मतलब मेजरमेंट के हिसाब से रहेंगे एंड रिलायबल भी रहेंगे. ऐसा नहीं कि तुरंत हम ले लिया उसका कुछ डिस्कम्फर्ट आके पूरा हमारा नेटवर्क जो हम सर्विस यूज कर रहे हैं और लाइक चैट बॉट जो भी आप यूज करेंगे स्विगी में कंप्लेंट करने के लिए या मेल सिस्टम में, तो उसमें कुछ एरर दिख जाए. सो टू हैव द बेस्ट थिंग विथ एथिकल नेचर एंड टू हैव द बेस्ट सर्विस. सो इसीलिए बहुत सारे चीजों की जरूरत है. मोर एंड मोर इफेक्टिव प्रैक्टिस सेट्स एंड डेटा सेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर इट. सो पोटेंशियल एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज क्लियर बाय जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अगर आप देखेंगे जाके, एक तो वो जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज अब तक जो आईटी सर्विसेज है या मैनेजमेंट सर्विसेज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अगर ये जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस को अडॉप्ट कर लिए एंड इफ दे वांट टू प्रोवाइड दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशंस, they have huge amount of expanded market in addressable market, new services and offerings with evolving needs of industries. So आपको बहुत ज्यादा मार्केट मिलेगा एंड मार्केट के हिसाब से you will earn lot of money. So this is one potential area उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री का, जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पा लेंगे एंड वो स्केलेबल अपॉर्चुनिटीज को उठा लेंगे. सेकेंड इज आपका जो डिलीवरी होगा जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत एक्सेल होगा, लाइक द डिलीवरी सिस्टम विच वुड बी देयर. सो यू वुड बी गेटिंग एप्रिसिएशन रिगार्डिंग विद इट एंड सेल्स एक्सेलेंस मिलेंगे, लाइक फ्रॉम लीड जनरेशन. तो जो भी फॉर एग्जांपल इफ आई एम सर्चिंग अबाउट वन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन फॉर टेकिंग ए कोचिंग, सो उसको हम क्या करेंगे, लाइक इंटरनेट पे सर्च करेंगे. इंटरनेट में तुरंत सर्च करते ही और जस्ट डायल में डायल करते ही व्हाट वुड हैपन, दैट लीड वुड रीच टू दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन. इन दिस वे आपका जो प्रोडक्ट है वहां किस किस को जरूरी है ना, तो उसका जो लीड होगा वो आपके पास आएगा, ताकि आपको कांटेक्ट मिल जाएगा एंड आप खुद फोन करके पूछ सकते हैं लाइक सर आपको ये रिक्वायरमेंट है, हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं. मतलब सेल्स का एक्सेलेंस जो भी है, लीड जनरेशन से लेके कांटेक्ट को आपका जो प्रोडक्ट है उसका एक्सप्लेनेशन करके ऑनलाइन या ऑफलाइन एंड सेल्स स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन भी इससे मिल जाएंगे आपको. सो बाय जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको कैसे स्ट्रेटेजिकली ग्रो होना, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रोथ इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, व्हाट स्ट्रेटेजीज यू हैव टू फॉलो, ये भी आपको मिल जाएंगे. क्लियर. सो सेल्स एक्सेलेंस जो भी है, दिस इज ऑल्सो वन एरिया विच कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड. एंड प्रोडक्टिविटी गेन्स, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्टिविटी गेन्स? जनरली इंटरनल एनेबलिंग प्रोसेसेस रहेंगे. जनरली कोई भी इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री में, इंटरनल एनेबलिंग प्रोसेसेस लाइक फाइनेंस, लीगल, एचआर,
generative artificial intelligence can automate these time consuming tasks like summarization, like फाइनेंस डिपार्टमेंट में या लीगल डिपार्टमेंट में, एचआर डिपार्टमेंट में समराइजेशन कर सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट है उसको समरी करके। अदरवाइज अगर वो मैन्युअल टास्क होगा इट विल टेक 1 to 2 hours। अगर यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है तो इट माइट टेक 5 minutes, समवेयर नियर क्लोजर टू दैट। सो वो जो प्रिसाइज्ड वर्क है वो करने की मैक्सिमम चांसेस हैं। एंड वर्क फ्लो जनरेशन जो भी है एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन जो भी है, मतलब tasking of investment of huge amount of manual power can be replaced by this particular generative artificial intelligence। हाँ, employment of that particular person would be lost, वो अलग बात है, वो हम negatives में डिस्कस करेंगे। बट ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं, ये एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटी, इंडस्ट्रीज जहां पे प्रॉफिट उठा सकती है, सो टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज, वो only when they adopt to this particular technological aspects। clear? so but इधर major important task is ये जो पैराग्राफ है ये डायरेक्टली आपको अपना योजना आर्टिकल में दे चुके हैं। I have just copied it from there। so ये जो ट्रांजिशन फेज है जहां पे थियोरेटिकल वाला बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वो जो ट्रांजिशन है थियरी डेटा सेट से लेके प्रैक्टिकल अप्रोच तक, वो जो है द ट्रांजिशन इज अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजी फर्स्ट एंड इट्स ए डायनामिक नेचर। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिए तो जिंदगी भर बैठ के खा सकते हैं, ये हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है भाई, है ना। इसको लाइक एडवांस्ड डेटा सेट्स की जरूरत होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लाइक एडिंग अप ऑफ डेटा सेट्स और एडिंग अप ऑफ सम बॉट सिस्टम्स इन इट, एडिंग अप ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोग्रामिंग इन इट, फॉर्मुलेशंस इन इट, एल्गोरिथम्स इन इट। सो ये डायनामिक नेचर को समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर 1। एंड इंक्लूडिंग रैपिड अपडेट्स, हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट होता जाएगा उसमें। एंड एवॉल्विंग रिस्क हॉरिजन विथ रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी एंड सोशल इंप्लीकेशंस। इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हम ट्रांजिशन हो रहे हैं, है ना, उसमें रिस्क हॉरिजन भी है विथ रेगुलेटरी टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल इंप्लीकेशंस। सो लाइक सोशल इंप्लीकेशंस में जेंडर बायस्ड हो सकता है, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो सकती है। टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में यू कांट डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल आपको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के ऊपर, लेट्स अज्यूम, एंड यू हैव आस्क्ड चैट जीपीटी टू make a report on it. It has prepared a report and you have copy pasted that particular report there. Now ये इसमें अगर मान लेते कि लाइक कुछ एरर है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का डॉक्यूमेंट जो ने चैट जीपीटी ने दिया है, सो वो एरर को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर डाल नहीं सकते, है ना। सो दैट इज योर एरर, दैट कम्स अंडर योर एरर, सो यू हैव टू प्रूफ रीड इट अगेन। सो वो जो टेक्नोलॉजिकल इंटरफियरेंस होगा, थोड़ा बहुत नेगेटिविज्म होगा, वो रिस्क हॉरिजन है, वी कांट कंप्लीटली रिलाई अपॉन इट। एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो भी होगा उस पर रिलाई नहीं कर सकते। सो ऑल दिस टेक्नोलॉजिकल कंपनीज, कॉर्पोरेशंस, बिजनेसेस, government organizations which are looking towards this artificial intelligence, they are trying to tackle these particular negatives which are present. So moving further, we would be seeing the article of potential growth and the negatives which are associated with artificial intelligence in the upcoming video. So please wait until that particular video. अगर आपको artificial intelligence क्या है ये पता नहीं है, तुरंत आप इससे पहले जो 3 वीडियो बनाऊं मैं artificial intelligence के ऊपर, एक बार वो देख लीजिए एंड बाद में ये वीडियो देख लीजिए। प्लीज अप्रिशिएट दिस वीडियो। इफ यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर दिस वीडियो टू एज मच एज यू कैन, सो दैट ये जो एजुकेशन रिवोल्यूशन हमने स्टार्ट किए हैं, सो दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ यूट्यूब सीरीज हमने स्टार्ट इसीलिए किए कि लाइक लोग कई रिमोट विलेजेस में या कहीं पे भी बैठ के, सो विद इन ए सिंगल फोन यूसेज से, तो वो लोग बहुत सारे सीख सकते हैं। ये एजुकेशन रिवोल्यूशन लाने की वजह से हम ये YouTube सीरीज स्टार्ट किए थे। सो प्लीज ट्राई टू help and support us by sharing these videos as much as you can. And if you haven't subscribed to Ekam IAS Academy channel, please do subscribe and click on the bell icon so that you would be getting regular notifications. And your valuable suggestions and feedbacks are always appreciable, so that it will help us to come better and better for you. And अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ आपके लिए वीडियो बनाएं, कुछ टॉपिक आप डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम वो टॉपिक को उठाएंगे एंड आपके हिसाब से वो वीडियो बनेगा एंड हम वो YouTube में अपलोड कर देंगे एकम IAS अकेडमी चैनल पे, ठीक है।
So this is up with this particular lecture. Thank you for watching this lecture. Have an awesome day. We will meet up with the next lecture in the next video. Hope you will support us as much as you can. Thank you. Jai Hind.